Thank you very much, sir, to providing me opportunity to speak on this subject. First of all, I thanks to all the members who have patiently stayed for a long time to discuss on this subject. I want to thanks Surita Devji, Bhuvanesh Kalita ji, Ayodhya Rami Reddy ji, Vasan ji, Shri Ram ji, Brajlal ji and V.S. Reddy ji for their contribution in this debate. Honorable Sir, we know that the India being a party to the Convention of Biological Diversity adopted in 1992, and after that the Earth Summit enacted and Biological Diversity Act 2002 was implemented by the government for achieving the mainly three objects. First, conservation of biological diversity. Second, sustainable use of its component. And third, fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of biological resources. And we are continue working on that. Then the question is, why this amendment and what is the purpose of amendment in the present act? As we know that we are having a three-tier level system to protection of the biological diversity. At the national level, we are having a National Biodiversity Authority. At state level, we are having a State Biodiversity Authority. And the local level, we are having a Biodiversity Management Committee. The present act provides a mechanism for assessing of biological and genetic resources and sharing of benefits in fair and equitable manner arising therefrom with Biodiversity Management Committee and benefit claimers. With this present amendment, I think that we are providing more mechanism, especially to our tribal people or local people. They have a vast knowledge of this tradition, and especially we want to promote Ayush and Ayurveda. And for that purpose, we amend this present Biological Diversity Act to achieve this object. That's the reason with this present amendment, we are simplifying and streamline the reduced complaint burden and encourage conducive environment for collaborative and research and investment. That is the first object. Second is simplify the patent application process. And patent is not only for the biodiversity, the other also. Tomorrow engineering people say our patent, you create our patent office. Tomorrow other the science and the chemistry, they say you create our patent office. So patent authority is one. Those who are in this field also, they are also apply in the patent office, but how we simplify the system. That is the object of us, and it's a government department and they coordinate in that manner that more and more patent we allowed in this field. And the third thing is widen the scope of levying access and benefit sharing with local community. That is the main object, and to further conservation of biological resources. And that's the reason with the present amendment and after talking with the stakeholders or concerned person, the present amendment aims to reduce the pressure on wild medicinal plant by encouraging cultivation of medicinal plants and removing the ABS compliance burden on the Indian industries. That is the first thing. Second thing, exemption of codified traditional knowledge from the purview of the Act for Indian companies. So we want to promote more and more Indian companies, and we want to protect the traditional knowledge also. Third thing, prior to this amendment, there was a very difficulty to the Indian companies to clubbing with the international organization, academicians and researchers. And with this amendment, we are aligning the provision with the Companies Act 2013 with regard to the definition of Indian and foreign company for attaching more foreign investment in research and commercialization. It is also an object of this amendment to facilitate fast tracking of patent application process of Indian company without compromising the national interest
and other international agreements where India is a party. Our also object of this amendment to decriminalize offences by opting for civil wrong in place of criminal offence in order to reduce the fear among the stakeholders for effective compliance. With this amendment, the state government unable to develop strategies and plans for conservation and sustainable use of biological diversity, enhance the flow of funds to the conservation of biodiversity, and simplified the administrative matter of the Biodiversity Management Committee operating at grassroots level. माननीय सभापति महोदय, अभी दो विषय यहाँ पर उठाए गए। पहला विषय जो हमने पावर दी है जॉइंट सेक्रेटरी को और इक्विवेलेंट अधिकारी को जो पावर दी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहीं भी जुडिशियल रिव्यू से अलग नहीं है। अगर आप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे सेक्शन 55(3) में, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई अगर पावर को गलत तरीके से उपयोग किया है तो फिर वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगी। सेम पावर इनकम टैक्स में और बाकी जगह अधिकारियों के पास रहती है। बाद में फिर अगर उसमें किसी प्रकार का कोई एरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, तो वो एक जुडिशियल प्रोसेस हमने, और उसमें भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी अपीलेट अथॉरिटी का प्रोविजन हमने दिया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय पर एक, चूंकि एक कमर्शियल विषय है, कमर्शियल विषय से हमें डीक्रिमिनलाइजेशन करने का उद्देश्य यह है कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बने। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, अभी हमारी जो उड़ीसा से सुलता देव जी बता रही थी, उड़ीसा में हमारे पास सिमरीपाल, सतकोशी और बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास पूरा एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। तमिलनाडु में भी तिरुपति, आंध्रा में तिरुपति जी का तो पूरा वेंकटेश्वर का पूरा बायोडायवर्सिटी एरिया है। केरला में भी हम जाएंगे तो पूरा साइलेंट वैली का एरिया हमारा पूरा बायोडायवर्सिटी का बड़ा एरिया। अरुणाचल में जाएंगे तो पाके का हमारा बड़ा एरिया बायोडायवर्सिटी का एरिया है। अंडमान निकोबार में बायोडायवर्सिटी का एरिया है। अगर मध्य प्रदेश में भी आओगे तो पूरा जो सतपुड़ा की रेंज है वो हमारा बायोडायवर्सिटी का बड़ा एरिया है। उत्तराखंड में भी जाएंगे तो हमारी जो घाटी, फूलों वाली घाटी, हमारा एक बड़ा बायोडायवर्सिटी एरिया है। ऐसे एरियाज की हमने पहचान भी करी, लेकिन बायोडायवर्सिटी एरिया में ये होने के साथ साथ भी हमारे देश में मेडिसिनल प्लांट को घर में लगाने की, कल्टीवेटिंग करने की एक परंपरा रही है। आयुर्वेद हमारे यहाँ जीवन पद्धति और पूरा कोडिफाइड है। ये जो वर्मा जी अभी कह रहे थे ये ठीक नहीं है। हमारे पास पूरा कोडिफिकेशन है, हमारे पास सब वनस्पतियों का कोडिफिकेशन है। और मेरे मंत्रालय में और हमारे को इस देश पे गर्व है कि हमारे पास एनिमल और स्पीशीज़ की जो टेक्सोनॉमी है उसको लेकर के ZSI जैसा इंस्टीट्यूट है। आप तो रेड्डी जी 96,000 बता रहे थे, ZSI के पास अभी उनके टेक्सोनॉमी में 1,06,000 स्पीशीज़ का टैक्स उनके पास अवेलेबल है, जितना हमारे टेक्सोनॉमी में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। और उसके साथ प्लांट के लिए भी हमारे पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जिसको हम मिष्टी कह रहे हैं, मैंग्रोव सीशोर अलायंस फॉर इंटेंजिबल इनकम, और ये दुनिया भर में इसका सराहा गया। और अकेले हमारे BSI के अभी मैंने देखा था मैंग्रोव्स की उन्होंने 500 किस्म की किस्मों की उनके पास टेक्सोनॉमी का रिकॉर्ड है। इसी के साथ इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत धरोहर कार्यक्रम शुरू किया। हमारी 75 रामसर साइट्स को हम लेकर के आए, क्योंकि ये भी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा काम करती है। और इस समय जब 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो पिछले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात दी थी। तो हमने अपने बायोलॉजिकल जो NBA है, नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी की, उनको हमने टारगेट दिया कि ये जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी बननी है इसको भी आप मेरी लाइफ ऐप पे चलाओ। और लगभग 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा गाँव में हमने इसको ऐप के ऊपर करा है। अभी हमारे मंत्रालय ने जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, मतलब नीम से लेकर के और जामुन से लेकर के, ये सब हमारे फल और हमारे पेड़ पौधे पर सबके अपने अपने मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। हमने इसके लिए पूरा एक लिटरेचर प्रकाशित किया है और हर गांव तक ये जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है इसको बनाने का काम किया है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जब हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके साथ साथ उसका संवर्धन, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का संवर्धन, उसके द्वारा रोजगार को खड़ा करना और रोजगार के द्वारा भारत के ट्रेडिशनल ज्ञान के साथ दुनिया को जोड़ना,
इसके लिए जो सामयिक आवश्यकताएं थी, उसके लिए हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में संशोधन लेकर के आए हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर से, राज्य सरकारों से, मंत्रालयों से व्यापक विमर्श किया। जनजाति मंत्रालय से हमने पूरी तरीके से व्यापक विमर्श किया, कैसे हमारे ट्राइबल्स को इस ट्रेडिशनल नॉलेज का फ़ायदा पहुँचे, उन प्रावधानों को हम इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। और इन सब प्रावधानों को लाने के बाद आज लोकसभा ने भी इसको स्वीकृत किया है और हमारा ये मानना है कि कमेटी ने जिस विस्तार के साथ अपने सुझाव दिए, उसको भी सरकार ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है। और ये बिल आज अपने एक संशोधित स्वरूप में भारत के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हमारे ट्राइबल लोगों के एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोसीजर बनाने के लिए, डीक्रिमिनलाइजेशन को निकालने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को करने के लिए, और सबसे बड़ी जो पूरी दुनिया मानती है कि सस्टेनेबल यूज़ के लिए प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल मिशन लाइफ, उसको मजबूत करने के लिए अमृतकाल के भारत के लिए ये बायोडायवर्सिटी का कानून हम संशोधन के साथ लाए हैं। और भारत न केवल नगोया ट्रीटी का भागीदार है, बल्कि उसके साथ ही साथ पिछली बार जब मॉन्ट्रियल में कॉप हुई, कॉप 15 में, तो जो एचई डिक्लेरेशन जो थे, उस एचई डिक्लेरेशन के बाद भारत ने जो मॉन्ट्रियल कॉप हुई, उसमें दुनिया के जो बायोडायवर्सिटी के लक्ष्य तय करने के लिए अपने पूरे योगदान को दिया। हम मल्टीलेटरल लेवल पर दुनिया के उस योगदान में कदम से कदम बनाकर चलने को तैयार है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत जो सीबीडीआर के दुनिया का प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मानते हुए अपने पर्यावरणीय सुरक्षा को करते हुए अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। उसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संशोधन हम लाए हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा, ये संशोधन जो देश के गरीबों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, हमारे आयुष के लिए, आयुर्वेद के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, रोजगार के लिए लेकर के आए हैं, ये संशोधन जो प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के विषयों को पूरा करने के लिए लाए हैं, ये संशोधन जो अमृत काल में भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज को दुनिया के सामने स्थापित करने में सक्षम करने के लिए लाए हैं, उसको पूर्ण सहमति के साथ पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।